Hello, everyone, and welcome to episode 2 of Alpaz Uncut. I'm your host, Tanvi Thakur, and today we have with us one of the most versatile trio of friends who are also the presidents of the three most prestigious societies of USME. We have Krishna Sharan from Shiddat, Prakhar from Deltec, who is also the former president of Ecotech, and we have our very own Shreyank Juneja from Alfaz. I'd like to thank you all for taking out your time and having this conversation with me. Thank you, Tanvi. Thank you so Thanks, much for Tanvi, for having us. having us. Okay, so my first question is for you, Prakhar. There are a lot of academic societies in the college, but Ecotech seems to outshine every society. So, what do you think is so special and unique about it that makes Ecotech outshine all the other societies in the college? Prakhar. First of all, yeah, thank you very much for the very good introduction. But I think there's a very good vision that everyone in the economic society shares. Right from our first president, Mahim Singla, everyone from since then have been working on building a community. And I've talked about this Hmm. very often. Everyone has been working on building a community of people who are enthusiastic about economics, about events which are related to economics, so that people get this very intellectually stimulating environment wherein they come and discuss about various things. So that has been the primary aim. And through all of the events, if you see, all of us have been trying to create this group of people, this group of interconnected individuals who come and through various means like writing, discussion, and debates, sharing their ideas about what they feel is the economy doing and how they think things should be done or things are being done. That's primarily it, and we have a very good team, and obviously Prakhar. Okay, all right. Acha, we have seen that Shreyank and Kristen, you have a really strong bond, and we all know your love for Shiddat and Alfaz. But at times in दोनों societies में ना काफी clashes होते हैं when it comes to events. So how do you cope up with that alongside keeping your friendship intact? Right. I'll give my 2 cents on this, and I think then Krishan can proceed. हाँ हाँ Right. So I feel कि like clashes की बात है और जब हम friendship maintain करने की बात है, from the very beginning of our journey at USME, I think at least in our batch we've had this very clear thing कि professional अलग रखना है और friendship अलग रखना है. ठीक है, तो there Hmm. are times when there are times when sometimes Alfaz, my society crosses some boundaries that Shiddat has to maintain, and sometimes Shiddat crosses some boundaries that Alfaz has to maintain. But we, first of all, we definitely try to keep it in the lines. मतलब पहला कोशिश तो ये है यार कि you don't disrespect or you don't violate what the other definitely. society is doing, right? And दूसरी चीज Hmm. ये जो मैंने बोली कि फ्रेंडशिप और प्रोफेशनल बहुत अलग अलग चीजें हैं जो हमसे पहले वाले बैच था उसमें शायद थोड़ा नहीं दिखता था हमें. लाइक वी सॉ अ लॉट ऑफ ईगो क्लैशेस, वी सॉ अ हम्म लॉट ऑफ बीबीए वर्सेस इको राइवलरी, बट आई डोंट थिंक दैट एग्जिस्ट्स इन आवर बैच एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. ठीक है, और दूसरी चीज ये कि व्हेन यू रियलाइज दैट art is something that is supposed to unite people, not divide them, और half of these clashes Yeah. go away, हाँ right? नहीं मतलब मेन मुझे भी यही लगता है कि एक तो ऑफ कोर्स हमेशा से पता नहीं एक ये अनसेड ही है कि मतलब एटलीस्ट विथ मी एंड श्रेयांक दैट जो प्रोफेशनल है उसको प्रोफेशनली करना है और जो पर्सनल है उसको पर्सनल तक से Right. मेंटेन करना है बट जो एक पर्सनल लेवल पे हमारी बॉन्डिंग है आई थिंक वो एट सम लेवल ईगो क्लैश नहीं होने देता है बिल्कुल भी एक तो उसका रीजन ये है कि अगर कोई इवेंट हो रहा है तो मैं ही श्रेयांक के पास जाऊंगा कि यार मेरे को बता दे या कोई फीडबैक दे दे इस पे या मेरा कॉन्सेप्ट है एंड द सेम थिंग मतलब श्रेयांक भी मेरे पास आके मुझसे फीडबैक लेगा कि यार मैं ये इवेंट सोच रहा हूँ सो आई थिंक दैट इज वन थिंग जो कि श्रेयांक सही कह रहा है कि हमारे बैच में ईगो क्लैश बहुत ही कम है तो उसकी वजह से मैं तो कहूंगा कि सारी सोसाइटीज काफी फ्रूटफुली मतलब अच्छे से पीसफुली फंक्शन कर पाती इवन दो काफी सारे Hmm. हमारे फील्ड्स हैं जो कि क्या बोलता हूँ ओवरलैपिंग है बट स्टिल आई थिंक वी मैनेज इट प्रेटी वेल और हाँ Yeah, I think it's really great that you guys think like that because art is something which should be celebrated. Right, absolutely. Uh,
My next question is, since अब freshers आ रहे हैं तो फिर the major thing जो वो मिस करेंगे वो होंगी college fests. तो फिर आपकी कोई memory ऐसी जो college fest से that makes you burst into laughter every time, श्रेयांक? कॉलेज फेस्ट, यस, आई मीन ऐसे तो यार मतलब कॉलेज लाइफ जब हम स्टार्ट कॉलेज आए थे यार, तो कॉलेज हमारा एवरीवन नोज इट्स कंपैरेटिवली न्यू। तो पहली चीज, आई मीन आई डोंट नो अबाउट लाइक लाफ्टर नहीं, पर एक हैप्पीनेस की बात ये थी कि जो एक्सपेक्टेशन थी ना, आई थिंक हम तीनों की, और एक फेस्ट से या कॉलेज कल्चरल कमेटी से, वो बहुत लो थी। सो व्हेन सच अ ब्यूटीफुल, जब अट्रैक्शन 2019 हमने देखा अपनी आंखों के सामने, वी वर सो इम्प्रेस्ड बिकॉज एक्सपेक्ट हमने कुछ नहीं किया था, बट इट वाज सो ब्यूटीफुली ड्रॉन आउट कि मतलब अच्छा, बहुत मजा आ गया देख के। हाँ उसमें बिल्कुल से बिल्कुल। है ना, तो वही एक काफी मतलब एक हैप्पीनेस की बात थी। दूसरी आई थिंक द फैक्ट कि जैसे यार हर फेस्ट का एक वो होता है कि हमारा आर्टिस्ट एक बड़ा आएगा, आज प्रतीक कुहाड़ आ रहा है, कल लोकल ट्रेन आ रहा है, परसों सिद्धू मूसेवाला आ रहा है। तो हमारे को पता था वो नहीं होना, ठीक है, बट हमें लगा था कि क्या ही होगा यार, कुछ नहीं होगा। तो यू विल नॉट बिलीव इट कि टिल द वेरी लास्ट डे ऑफ अ फेस्ट वी डिड नॉट नो इफ एनी आर्टिस्ट वाज कमिंग, हाँ एंड इन द वेरी अच्छा। हाँ हाँ, कोई एंड इन आ द भी नहीं वेरी रहा एंड, था। हाँ हाँ, बट फिर वो कोई मतलब कल्चरल कमेटी ने अपने हाथ पे हिलाया हाँ अच्छी तरह, हाँ, तो मूव्ड सम सम डीजे बजट फ्रॉम अमाउंट्स। आईआईटी में। हाँ हाँ हाँ, तो आईआईटी Correct. मतलब And the best part is that despite knowing कि कोई नहीं आ रहा था, तब भी ऐसे भर भर के बच्चे आए थे हमारे कॉलेज के। हाँ एग्जैक्टली, No one was of the opinion कि भाई ये तो अच्छा फेस्ट नहीं हो रहा, just leave it be. हाँ Everyone, that's what ये पिछले वाले क्वेश्चन में I felt काफी left out, but ये वाले में that's one reason हमारे कॉलेज में people support everyone's venture a lot. हाँ What हाँ हाँ, ये बात सही है venture is, क्योंकि हाँ, it's very मतलब good. Yeah. छोटा कॉलेज है ना, तो कोई भी इवेंट हो रहा है तो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे अभी लिटरेरी का ओपन माइक हुआ था, जो कि मुझे लगता है कि काफी मतलब हमारे कॉलेज का पहला ही ओपन माइक, मतलब अच्छा बढ़िया इंट्रा ओपन माइक था, ठीक है। Correct. तो यार Yeah. उसमें तुम समझो कि पूरा एक क्लासरूम भर गई थी, उसमें भी खड़े होने की भी जगह नहीं थी पीछे, इतने लोग आ गए थे, क्योंकि ऐसा है कि हमारे Yeah, कॉलेज। even people were sitting नीचे हाँ, जमीन पर. अरे मैं श्रेयांक हम तो खुद शायद नीचे जमीन पे बैठे थे, बट हाँ द थिंग इज हाँ, कि कोई भी इवेंट ऐसा हो तो कॉलेज में ना एक एक वाइब क्रिएट हो जाता है, एक ऐसा होता है राइट, कि यार हम्म. कॉलेज में कुछ हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट ये सेम चीज जब मैं अगर डीयू कॉलेजेस में हम कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं ना, सो देयर इज वन डिपार्टमेंट जो कि कोई कॉम्पिटिशन करा रहा है एंड अदर डिपार्टमेंट्स आर नॉट इवन इन्वॉल्व, ठीक है। मतलब कि वो अपना बेसिक अपना क्लास कर रहे हैं, जो अपना उनकी जिंदगी अलग चल रही है, और कॉलेज में एक इवेंट चल रहा है। पर हमारे कॉलेज में ये अलग है, जो कि मुझे बहुत सही लगता है कि हर इंसान इन्वॉल्व हो जाता है, हर इंसान पार्टिसिपेट करना चाहता है, क्योंकि इतना एंड जस्ट टू क्लोजली बॉन्डेड कॉलेज है। just to give you an idea on how this works, Krishan is a member of my society. I am the editor of Prakhar's former society, and Krishan and Prakhar are both parts of my society, and I also help them in their events. तो मतलब ऑटोमेटिकली जब हम एक दूसरे के वर्क में इन्वॉल्व हैं, तो हमें बहुत अंडरस्टैंडिंग रहती है कि देखो इस सोसाइटी का ये प्लान है, अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें तो सबकी हेल्प हो सकती है, हम्म, और वो काफी Yeah. सही रहता है। Right, and also given the fact that we've actually seen that construction site grow into हाँ college हाँ, या overnight. अरे So वो तो it's सबसे मतलब why क्या ही that's matlab I remember initially when we used to come, we were like so disheartened कि भाई क्या है छोटी सी वो पड़ी है कोने में, and then there's this कलर का कपड़ा which is lying in between garden lawn. Lawn अरे was our हाँ, favorite. Yeah. और वो लॉन में वो लोग कंस्ट्रक्शन के सामान फेंक के चले जाते थे, तो दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी इन द बिगिनिंग, बट देन वी ग्रू ओवर इट और फिर धीरे धीरे वी काइंड ऑफ एडजस्टेड टू इट कि अच्छा चलो ठीक है, जो है वो ही है, एंड इट केम आउट एक्चुअली. हम मतलब This is a question I've been meaning to ask. मतलब in my 1 year मुझे ये समझ नहीं आया कि when the college was so under construction, what made you people decide कि इधर आना है? भाई परसेंटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो योर या क्वेश्चन हर्ट्स अस। यस वैसे वैसे तन्वी, फर्स्ट तुझे प्रखर की परसेंटेज पता नहीं है, ये हंस तो रहा है, ये अपनी परसेंटेज बताएगा तो मजा आएगा तुम्हें। नहीं रहने दो, मैं नहीं बता रहा. क्या थी? अरे नहीं, now I want to know. भाई ऐसे कितनी कोई तोड़े परसेंटेज. I was not getting any DU के नॉर्थ कैंपस कॉलेज.
economics. ये पता है कौन सा कॉलेज छोड़ के आया? ये हिंदू कॉलेज छोड़ के आया DTU यूएसए में, प्रखर। What? Why? Bhai, That's I true. was ये getting I don't know that. political science there, and I really wanted to study economics. Plus, I was not aware of the fact that there's an East Campus, so that was one reason अरे that I नहीं, chose. percentage से ज़्यादा I think everyone would have settled somewhere or the other. I think we all three of us did, but the DTU brand name I think was one thing that attracted us the most. Yeah, correct. हाँ मतलब I personally did not know कि DTU ईस्ट कैंपस कैसा है क्या है. I was like कि अगर DTU कुछ कर रहा है तो अच्छा ही होगा. तो Exactly, मतलब exactly. मैं इसके पहले विप्स में था जो IP का कॉलेज है. मैंने वहाँ एक हफ्ता कॉलेज अटेंड किया था और उसके बाद जब मैं DTU में आया था पहले दिन तो ये लेजिट मतलब एक खंडर क्या कंस्ट्रक्शन साइट ही था. मतलब मजदूरों के साथ पढ़ रहे थे एक मुश्किल से और धूल इतनी ओहो धूल ही धूल. ठीक है. और विप्स जो है वो लेजिट होटल जैसा दिखता है कॉलेज. मतलब कि कोई इसमें दो राय नहीं है. उसकी 2 बिल्डिंग है पूरी शीशे की. और मैं यहाँ DTU में आया मेरे को तो बहुत धक्का लगा. और मतलब अभी तो फनी स्टोरी तो क्या, पर मैं पहले दिन आया, एक दोस्त एक कनव करके एक बंदा हमारी क्लास में, मैं उसके साथ बैठा. तो कनव मैंने कनव को कहा कि यार प्लीज मेरे को यार कॉलेज दिखा दे. ठीक है. कनव मैं बताता हूँ जो छोटी वाली बिल्डिंग है जिसमें कंप्यूटर लैब है हमारी क्लास उसमें होती थी. हम उससे बाहर निकले. ठीक है. मुश्किल से 15 कदम चले और कनव कहता कॉलेज खत्म हो गया. और उस समय जो मुझे धक्का लगा, ठीक है, उस समय जो मुझे धक्का लगा मैंने कहा अच्छा भाई लाइब्रेरी दिखा दे. कहता बनी नहीं. कंप्यूटर लैब दिखा दे, अभी सेटअप नहीं हुआ. ठीक है. कैंटीन लेके गया, उसमें भी अभी खाना बना नहीं है. मैंने कहा भाई क्या क्या चल रहा है कॉलेज में. भाई ये तो बट आई मीन इफ यू लुक एट जो हमारा कितने 3 साल होने को आए हैं ऑलमोस्ट. 3 साल पहले और 3 साल अभी मतलब जो मैं देखूं which was August 2018 to right now, the change has been drastic. मतलब हमारे जूनियर्स को तो वो देखना भी नहीं पड़ा जो हमारे. And I really pity our seniors क्योंकि वो जब आए थे they used to tell me that there was no canteen. Canteen भी उनके आने के 6 महीने बाद बनी almost. So that was I really think about their mindset जब वो आए कि भाई and also they had to suffer because of us क्योंकि हम छोटी बिल्डिंग में क्लास अटेंड करते थे. ऊपर MBA का क्लास होता था और वो लोग टूटी हुई बिल्डिंग में बिना एसी के बैठते थे. वही भाई. एंड दे वर रियल खतरों के खिलाड़ी. कभी भी तुम्हारे सर पे बोरा गिर जाए कहीं से, यू नेवर नो. I don't know if this was true, like this could have been just a advantage of a government college or not. But the thing what happened was DTU admin handed us all like insurance 5 lakhs per head का insurance. और फिर किसी ने बोला यार ये इंश्योरेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कभी भी छत तुम्हारे सर पे गिर सकती है. I got so afraid I never went in that building for like 10 days. भाई उस बिल्डिंग में घुसते से ही मेरे को इतनी खांसी होती थी घुसते से ही, क्योंकि उसके गेट पे ही सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता था फॉर सम रीजन. और जो उसका मेडिकल रूम है वो तो सबसे लास्ट में बना है ना, और वो शुरू से बन रहा है. मतलब उसमें घुसते से ही इतनी खांसी आती थी कि तुम्हें उसको अंदर जाने का मन ही नहीं करेगा. हमारे कॉलेज में मेडिकल रूम है. पर ऐसा नहीं है कि हमने भी स्ट्रगल नहीं किया. हमने भी करीब 6 महीने बिना एसी के हम भी बैठे हैं गर्मी के दिन. बहुत स्ट्रगल. और खांसी का तो तू क्या ही बोल रहा है भाई. मानसरोवर पे उतरो, यू कैन लिटरली फील द चेंज इन एयर. कड़कड़ुआ गैंग व्हाट्स अप. थैंक गॉड मेरा मल्टीपल है, मैं कहीं से भी जा सकता हूँ. बट यस आई हैव एक्सपीरियंस्ड द मानसरोवर. क्या है सही में भाई. मतलब यू स्टेप आउट ऑफ द मेट्रो, सडनली इट्स ऑल गर्मी एंड देन यू smell that factory. शेरनोबिल है भाई, वो शेरनोबिल है वो. Plus फिर वहाँ के बच्चे भाई, those बच्चे they will not leave you alone if you do not give them money. भाई प्रकाश, that's because like that only happens with you. You're the sweetest looking guy ever. Like it's never happened. नहीं भाई कुछ फिर ऐसा बोलना पड़ता है मेरे पास तो कुछ है नहीं इससे ले लो. भाई कृष्ण हमेशा करता है. कृष्ण इज सच अ बैड गाय. इसके साथ कभी भी जाओ और कोई ऐसे पैसे लेने आता है तो ये कहता है मेरे पास तो है नहीं, मैं तो इसके पैसे से आया हूँ. That is a skill you acquire with time. पता है मतलब I have acquired this skill with time कि अब नहीं, मतलब अब वो जल्दी सर नीचे करके तेजी से एस्केलेटर पे वो एस्केलेटर पे. अभी भाई मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि भाई इनिशियली यार मतलब कि ये चल थोड़ा अलग बात हो जाएगी, बट इनिशियली यार मैंने वो जो मानसरोवर वाले बच्चे मैं सबको जान गया था, क्योंकि पहले हफ्ते ना मेरे कोई खास दोस्त थे मतलब बने नहीं थे कॉलेज में कि मोहित वोहित ही बने.
तो मैं ना उनको मतलब वो जो एक एक दुकान है ना वहाँ पे छोटी सी जो जूस वूस वाली, मैं ना वो आनंदा। 5-6 बच्चे हो जाते थे, मैं उन सबको भाई वो 10 वाली फ्रूटी और जूस दिला देता था, ठीक है। हाँ Oh, Oh हाँ my Oh, God. हाँ, और भाई मैंने ये ये साउथ दिल्ली रिच ब्रैट्स ना, I tell you. अबे रिच ब्रैट्स कुछ नहीं यार, वो एक और वो बंदा मेरे को ना थोड़ा सा कंसेशन दे देता था कि अच्छा ठीक है, अच्छा काम कर रहा है। पर भाई उसके बाद फिर भाई वो एक टाइम के बाद बंदे कहते कि हमें तो पीना ही, हमें तो पैसे चाहिए। मैं कहा मैं नहीं दे रहा। तब से मैंने हाँ ये वही, मतलब आई यूज टू फॉर, मैंने मम्मा को बताया था ये सब, मम्मा ने कहा था कि भाई तुम रोज जाने, समवन आस्क यू मनी, तुम उसको संतरा निकाल के दे देना अपने बैग से। उसके बाद थोड़े दिनों बाद बच्चों ने मुझे अवॉइड कर दिया, संतरा दे रहे रहने दो इसे। अब ये तो हमसे भी गई हुई भाई उनको ऐसे सीजनल फ्रूट्स मिलते थे फिर मेरे से। उन्होंने, और नो टू न्यूट्रिशन, आई वांट। है। Okay, so now I'll be asking you a series of questions जो freshers को help करेंगे to get to know the college better. All right. My first question is, what is the best hangout spot for breaks? Maggie Point. मैगी पॉइंट अब तो मैगी Maggie पॉइंट। Point, hands हाँ down, yes. हाँ But before winter, the lawn is also a very good place. Oh, In winter Santal में हाँ lawn hands down लॉन again. Yeah. Right. I लेट don't जाओ वहाँ पे कोई know. कुछ नहीं होता. I've क्या क्या heard from Prakhar के friends that he prefers Caventer's Market ज़्यादा. Yaar, Caventer's Market is very far. So like if you have to दूर है यार go Cavendish। eat and then come back in an hour, na, you can't make it. मतलब If you And it's can a still make 2-3 it hour but वो break, then to बहुत for sure. रश है। हाँ I हाँ don't know who told you that, but I really prefer Haldiram's over anything. So Caventer's Also हल्दीराम Market, now, I mean, हल्दीराम जो कॉलेज के बगल में है, उनकी प्लेलिस्ट मतलब बेस्ट प्लेलिस्ट इन एनी genuinely, कैफे एवर। genuinely. Right. मतलब I mean, yeah. I remember this one day. Shrey or Simran, they went for the movie upstairs in the PVR, and I and Ria sat there for 4 hours straight, doing nothing but listening to their playlist and doing maths. Imagine. क्योंकि उनका इतना अच्छा environment. भाई मेरे but को I हमारे really, टाइम, I mean the thing is we got used to Maggie Point because हमारे टाइम पे कुछ ज्यादा था नहीं, but now the new up and coming and better than Caventer's Market is a Big Book. yeah, बेक big, बुक good place. यार बेक बुक अगर मैं वैसे बताऊँ ना तो बेक बुक इज नॉट समथिंग कि तू रोज जा सकता है, जो भी बजट कंस्ट्रेंट लगा ले या कुछ भी लगा ले। मैं तो कहूंगा कि यार मैगी पॉइंट का जो वाइब है ना, ऊपर से जो अंकल है ना यार, वो वो अंकल तो असली बहुत वहां ही की अच्छा है. वाइब He's कैरी so करते sweet. Very sweet. हैं। हाँ अंकल से तो फिर हमारा ऐसा बन भी आता ना, वो हाँ मेन्यू में आइटम्स हमें टेस्ट के लिए देते थे कि पहले खा के हाँ खाओ। हाँ 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 अप्रूवल हाँ वाला right. सी। हाँ हम लोगों ने जब अंकल ने पहली बार शायद पास्ता लॉन्च करा था, तो वी वर द फर्स्ट पीपल टू हाँ, टेस्ट इट। मैं प्रखर और हम लोग थे वहां पे। मैं भी था. अरे वहाँ पे आनंदिता तो ऐसे and Mukul also there. हाँ 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 वहाँ पे तो काफी ऐसे लोग थे वहाँ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो जाता है कि भाई यहाँ पे। हाँ अंकल यू आर अपना। हाँ Yeah, no, but हाँ I सही really बात है। like Big Book. जैसे I love coffee and teas, right? हाँ हाँ But their drink when it comes to hot drinks is extremely good. वो they have a whole coffee हम्म। press and everything. तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है Big Book यार. बिग बुक इज यार नाइस, बेक पता बुक तो है ही बहुत अच्छा है यार, उसमें कोई बट बोलना देन नहीं है। इट्स बट नॉट अ प्लेस, वो ना इट्स तू नॉट अ प्लेस मुझे यू कैन गो विद अ ग्रुप, अ बिग हाँ 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 हाँ. एग्जैक्टली You एग्जैक्टली can't go with a मतलब तू group. 2 लोग 3 लोग जा रहे हैं, मतलब फिर भी काफी चिल रहता है। पर अगर जैसे ज्यादा लोग जा रहे हैं ना, तो उनके पास है नहीं उतनी सीटें। Right. जगह। द हाँ, द थिंग अबाउट बेक बुक इज कि तुम किसी को स्कूटी पे भेज दो और वो लेके आ जाए। वो मुझे लगता है कि वो काफी सही सीन रहता है बेक बुक का। मैगी पॉइंट इस तरह से रिसोर्सफुल भी है बिकॉज साइड में अगर तुम्हें फोटो कॉपी करवाना है ब्रेक में, फोटो हाँ, कॉपी करवाओ और मैगी खाओ या कुछ भी खाओ और चिल करो. और ऑफ कोर्स देयर नींबू पानी इज फ्लॉलेस. अरे करेक्ट। नींबू एंड सोडा द नींबू आइस सोडा. टी, एंड द आइस टी। आइस टी आल्सो, ये yes. Okay, so now we have started talking about exotic food. So I want to know आपके हिसाब से कैंटीन का सबसे बेस्ट फूड क्यूजिन क्या है? None of the above. Did she just say cuisine? Did she just say cuisine? Bhai, so I don't know how many people will hate me. There are a lot of freshers to come. There are a lot of people in college. But if you eat chowmin samosa, you are trash. I'm sorry. Sorry, but And that's the there's truth. actually oil dripping from that samosa, and it's so What? unhealthy.
उससे Yeah. अरे इट्स नॉट इवन अबाउट अनहेल्दी यार, मतलब वो मेरे को बहुत समय तक लगता था कि वो चाउमीन जो है ना, वो अपनी चाउमीन सरसों के तेल में बनाते हैं, क्योंकि हाँ भाई उस मतलब कि इट टेस्ट लाइक चाउमीन भाई। उसमें एक एक चाउमीन होता है, एक इंडियन चाउमीन होता है, एक मसाला चाउमीन। उनमें इन तीनों में से कोई, मतलब देखो, तुम थोड़ा सा खराब खाना खाते हो, मैं ये नहीं कह रहा उनका खाना खराब है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम थोड़ा सा खराब खाना खाते हो तो क्या होता है, पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है ना। इनका खाना खा के तुम्हारा गला खराब हो जाता है। इनके पास प्रॉब्लम ही अलग है भाई, मतलब। भाई जैसे मेरा मेरा स्केल क्या है कि एक तो अनहेल्दी फूड होता है और एक होता है अनहेल्दी फूड विच इज वर्थ इट, विच इज वर्थ द रिस्क। अब Right. वेरी ऑनेस्टली कॉलेज In कॉलेज के that बाहर, category, I put the छोले व कुलचे वाले भैया. या Right. कॉलेज के बाहर छोले कुलचा इज वेरी अनहेल्दी। ओके, आई कैन बेट $1,000 कि ओनली माय इम्यूनिटी सिस्टम हैज फॉट थ्रू इट, आई डोंट नो, बट दैट इज गुड, दैट इज वर्थ इट। हाँ यार, मतलब वो तो, मतलब ठीक है यार, दैट इज गुड, इट इज। अच्छा, तो और talking मतलब about the college canteen, I think Junnu will also agree to it. The Oreo biscuit there is the best. नहीं, It's the best thing that they I have. personally like aloo samosa also, not gonna lie. Yeah, केवीबी सर लव्स ब्रेड पकोड़ा। yeah, KVD he's sir the loves red pakoda, dude. ambassador of bread pakoda from our canteen, Balaji Also, canteen. just to add to the previous question, which is favorite hangout spot around college, not a lot of people know about this, but there's a Radhe Krishna Chole Bhature wala near the Kadkadua metro Right, yeah, station, that's Yeah, very that's a really good place. which is yeah. really It's good. और बिल्कुल उसके सामने, राधे कृष्णा के बिल्कुल सामने, there is a whole community center जहाँ पे और छोटे मोटे restaurants हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वहाँ पे वहाँ वो एक भी है, आइसक्रीम वाला है यार, वो गए थे हम, का क्लासिक्स क्या नाम है क्लासिक्स उसका? क्लासिक्स क्लासिक्स, क्लासिक, वो पूरा आइसक्रीम सेंटर है, वो बहुत जबरदस्त, बहुत अरे हम और जबरदस्त। लोगों ने मतलब और क्लासिक्स आइसक्रीम के साथ में लॉलीपॉप्स वो भी खाई. है, पूरा उसका सिग्नेचर स्टोर कौन सा है वो, हाँ हैवमोर। हाँ हाँ हाँ, हाँ हैवमोर का ही, अरे हाँ हाँ, बहुत सही जगह है यार, वो वहाँ बहुत पे अच्छी जगह। आसपास में, दैट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू गो अराउंड. या बट बट राधे कृष्णा के छोले भटूरे बहुत, इनफैक्ट उन, अगर तुम राधे कृष्णा जा रहे हो तो वहाँ उनकी मसाला चाप और लच्छा पराठा जरूर खाना। छोले हाँ, भटूरे उनका तो है ही जो फूड खाना है। नान इज ऑल्सो वेरी गुड. हाँ, चुरचुर नान, अरे इतना सॉफ्ट नान तुमने कभी नहीं खाया होगा, और मसाला चाप तो चलो है ही एंड बहुत जबरदस्त। लस्सी, ऑब्वियसली लस्सी। ओहो, That's your बिल्कुल भी, correct. Yeah. बिल्कुल। And also, in between, when our college canteen guys also started to sell lassi, that was also very good. But उन्होंने बंद कर दिया, बेफालतू में अच्छी चीजें बंद कर देते हैं. अच्छा, Then my next question is specifically for Prakhar. Uh, which society do you think is better, Ecotech or Deltech? Oh my Oh. God. Shreyam, did you get this question? can I please say, No, I had no say in the question because even can I please say something controversial? can I please what? Yes, yes. Sharan, please go ahead. Can I Then I'll answer. can I please say something controversial, and then you cut it off when you release the Wait, podcast? what? Cut off what? We're not gonna cut it off. Please. Because, oh shit, then I'm not gonna Okay. say it. So I think the fact that I've been involved with Deltec for a very long time, Deltec MUN and Debating Society is something that I and Shubh actually started from scratch. हमारे पास इससे पहले there was this quizzing and debating society, Voicer Quizzer, जो MBA के किसी बंदे ने start करा था और फिर वो लोग चले गए, उन्होंने कहा कि बस खत्म करो. And then we had to actually get the society dissolved to so as to start our society. And that is why we have this peculiar combination of Deltec, MUNing and quizzing. Quizzing ऐसे नहीं आ जाती debating societies में. We had to get it into our society domain because हमारे पहले वाले उनके पास था. And I've been involved with Deltec say for 3 years now. We've watched it grow in front of me. It's like a very ऐसे मैं बड़ा nostalgic हो गया. But question का answer would be, I think, better, I would say, more emotionally connected, I think I am with Deltec. But EcoSoc in the last 1 year, जब से मैं president हूँ, has done a great job. And before that, also, these people have been very active. So the मतलब Ecotech has started with their own podcast magazine, and they were working on the podcast, but Alfaz got in, bad people. So Alphaz is best. I think I think it will be Deltec with which I'm more connected. I find, but I think EcoSoc has done a very good job. Very diplomatic.
Thank you. Can we just clap for this controversial, like this politically correct answer? I know. I'm after doing so But many but arguments, but this is the thing that I notice one thing. भाई notice one हाँ thing यार, मतलब कि प्रखर का अपने लिए प्लगइन, इट इज नॉट इवन सटल. मतलब इकोटेक, अजय, अरे जब से मैं प्रेसिडेंट बना होता, अरे जब से तो प्रेसिडेंट बना तब से तो इकोटेक चल रहा, Oh, स्टार्ट ही हुआ है also यार. former Ecotech president. All the freshers, Ecotech always does this treasure hunt thing in your first year of college. Okay, and and give you I certificate. had won. I was in the team that came first, and I still haven't got my certificate. Guys, Just that wanted to is put this something up. Yeah, that is and something I you had should blame. designed the prelims. Okay. Guys, we still ये haven't gotten a certificate. this is nothing that I can do anything about. मेरे रहते, under my reign, all the competitions that have happened, you got all the certificates for that. Okay. No. Okay. Sharon, That is true. and say something. Okay, let's Yes, move on to yes. I have got all my certificates. This is paid audience, wrong. Okay, let's move on to the next question then. Who do you think is the one teacher जिसके पास कोई भी student कभी भी जा सकता है with their problems? Puneet sir. Puneet sir, yes. Puneet sir is that Puneet one. sir, definitely. हाँ, But सही बात. because he's very busy these days, I think our teachers apart from Puneet sir are also very cooperative. I think Yeah, I've never faced a problem where I can't go to a teacher for something. right, All yeah, of our some teachers, yet are even very, guest very हाँ faculties for that matter. यार, correct. मेरे को Yeah. ऐसे लगता है कि हाँ जी. But even personally, I feel Puneet sir यार सबसे मेरे को ऐसे ज़्यादा लगता है कि approachable हाँ teacher हैं. In my हाँ time, I feel that. Puneet sir. Puneet sir सबसे ज़्यादा relatable भी है. He shares, हाँ, नो डाउट यार, नो डाउट. yeah, he shares memes. वो हमें हाँ references हाँ, देते हैं पढ़ाते वो time अरे top पुनीत, shows के. Hmm. This very amazing thing happened on our हाँ class सही group. बात. अरे पुनीत सर बहुत हाँ, चिल है. this thing happened on our class group. अभी वो ना, he won a Teachers Day का quiz that happened. That was organized by CC. Yeah. So everyone on our class group just went, congratulations sir. And what happened was he actually shared a meme where Leo DiCaprio wins the Oscar. I have waited for this. वही, But अरे it was after we asked him for an and acceptance. even मतलब it was क्या amazing. क्या. It was Puneet sir is after too good. yeah, he's very. हाँ अरे टू गुड यार. हम इतने चिल होके मीम शेयर करते हैं ना, मतलब पुनीत सर के व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि मतलब बहुत And बहुत ही सही. apart इवन कस्टम apart डिजाइन. from like the personal, if you have any issue and if you are facing something, even on an educational level, Puneet sir teaches you so calmly, and Puneet sir clears all your doubts so well कि मतलब मजा आता है उनकी क्लास में बैठने में. वही, मतलब he gives that extra efforts and that's very genuinely visible कि Yeah. अच्छा this is अरे something यार he's doing. मतलब ये पता नहीं ऐसे कहना चाहिए, बट आई थिंक पुनीत सर इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग टीचर्स आई हैव एवर सीन इन कॉलेज. क्योंकि बीच में एक ऐसा टाइम था जब दिल्ली इलेक्शन चल रहा था, ठीक है, और पुनीत सर की शायद इलेक्शन ड्यूटी भी थी, और तुम लोगों को पता ही होगा वो प्लेसमेंट सेल में भी इंटर्नशिप फेयर इन्वॉल्व है, चल रहा था. और वो हाँ, रोज आकर के हमारी क्लास लेते थे, और इंटर्नशिप फेयर आने वाला था, और वो रोज आकर के हमारी क्लास लेते थे रोज. मतलब और वो ऐसे भी नहीं कि मजे मजे में पढ़ा, अच्छे से बहुत टाइम दे करके पढ़ाते थे. और मतलब वो बहुत मतलब हैट्स ऑफ यार. उस टाइम तो हम लोगों ने देखा ही था कि और सर्टिफिकेट टू भी पुट गई इट इन वन सेंटेंस, मतलब अगर सबको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि अगर 1 घंटे की क्लास है और कोई भी टीचर 1 घंटा 10 मिनट कर लेना उसको, तो लोगों को मतलब थोड़ा सा ऐसे लगता है, अनईजी फील होते हैं बच्चे. बट पुनीत सर की क्लास ऐसी है, अगर वो 1 आवर से 10 मिनट्स हो जाए एक्स्ट्रा, तो nobody I don't think would mind. Correct. And because Puneet sir would always be so energetic in the class, ऐसा लगता था वो ग्लूकोज बहुत सारा खा के आए हैं. He would sit around, write on the board, इतना सारा derivation, he would just write on the board, rub it, and then write again, and say so many things along with that. मैं लिखते लिखते थक जाता था, and he would be all on his essay, ultimate energy. एंड पुनीत सर कीप्स ऑन द जोक्स गोइंग, मतलब क्लास में पूरे टाइम. और वो मेरी बेइज्जती भी कर देते वो हैं. सबकी बेइज्जती कर देते हैं. He is not afraid.
तो वो मजेदार है, फन है यार, बहुत मजा आता है उनकी बट क्लास में। वैसे मतलब अगर आई थिंक आई डोंट नो इफ ऑल ऑफ यू अग्री कि टीचर मेरे को ऐसा कोई भी नहीं लगा जिसको मैं अप्रोच नहीं कर सकता। हाँ, सेम। सारे ही बहुत कामिंग और अच्छे हाँ ये टीचर्स तो हैं। राइट, और आई थिंक ऑल इवन द टीचर्स वी हैव हैड, सब बहुत अच्छे हैं। if all the freshers are also listening, अगर किसी भी टीचर को अप्रोच करो, nobody would be like कि मेरे को मैसेज मत करो या मेरे को कॉल मत करो और they ignore you. हाँ Everyone हाँ will हाँ reply to you promptly, like whenever they're free, and they will try to help you in the best way possible, I feel. राइट। हाँ, ये तो है यार, One ये reason because definitely। अभी हमारे कॉलेज में in the initial years everything was not very well structured. So हमारे assistant professors पे there was a lot of admin responsibilities as well. Right. Apart from that also they used to give a lot of time to our studies and काफी सारे teachers हमें अलग से देते थे कि अगर masters करोगे तो ये बहुत important है. So all of that is very very good. But that shows that they want you to grow, and that's very good. I just like to say that this is the first time I've had a conversation with you guys this long, and seriously, I've laughed so much that my jaw literally hurts. So before we leave, since अब कृष्ण हमारे साथ हैं, तो कोई दो लाइन हमारे फ्रेशर्स के लिए जो उन्हें इंस्पायर करे. Yes, Sharan. Please. अरे यार, एक तो ये इंस्पायर वाला तुम बहुत उसमें डाल देते हो। इंस्पायर करना नहीं आता मेरे को, दुखी आपके चीजें लिखना सारी आता है बस। शायरियां इंस्पायरिंग ही लगती हैं. अरे भाई, दुख में लिखता हूँ, तुम्हें कैसे इंस्पायरिंग लगती है यार? That's the beauty of तुम्हें तो फिर समझ ही नहीं आ रही है यार, मतलब। पर यार मैं इंस्पायरिंग तो क्या ही अरे सुनाऊं कुछ भी यार। सुना दे जो अच्छा लगता हो। यार इंस्पायरिंग चलो मेरी नहीं है, बट मतलब जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, मुझे जाकिर खान बहुत पसंद है, ठीक है। तो जाकिर खान की एक बहुत अच्छी एक पोयम है, उसका नाम है शून्य पे सवार। पता नहीं अगर तुम लोगों Yeah, ने सुनी है तो, I've मतलब, heard that. है ना? तो हाँ, तो शून्य पे सवार हूँ वॉज द फर्स्ट पोएम दैट जाकिर खान हैड रिटन। तो वो ऐसे शुरू होती है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं एक खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद खैर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। ये ऊंच नीच से परे मजाल आंख में लड़े, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। तो क्या ये बात है यार। उसकी कुछ पहली दो लाइनें हैं। That तो was really ये beautiful. I would just like to thank you all for accepting to do this, and I thank everyone who listened so far, and I hope that you enjoyed being a part of this conversation. We'll be back next week with another episode of Alfaz Uncut. Till then, see you.